السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے اور آپ کی ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، آج 30 اگست 2024 بروز جمعہ اسلامک دعویٰ سینٹر نسیم کی طرف سے یہ دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، ہم مشکور ہیں مکتب جالیات نسیم کے اور وہاں کے داعی، خاص طور سے فضیلت الشیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ آفتاب عالم صاحب حفظہ اللہ، اور دیگر تمام ذمہ داران جنہوں نے بڑی کوشش کے بعد یہ پروگرام منعقد کیا ہے، جس میں آپ سب حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مل کر دعوت کے کام کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اسی کے متعلق کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس کا مقصد بھی بتلا دیا ہے۔ جس طرح سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جس سے ہمیں نقصان ہو یا نفع ہو، لیکن کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت انسان کو بھی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ زندگی بھی بہت مختصر زندگی ہوتی ہے۔ جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سوال بھی کرے گا، اس کا حساب و کتاب کرے گا، اور اس کے بعد پھر ہمارا اور آپ کا معاملہ طے ہوگا۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس دن اس کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھتا جاتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور وہ اس دن کے قریب ہوتا جاتا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے۔
اللہ तबारक व तआला के सामने उसको हिसाब व किताब देना है। यानी ये कि एक इंसान जैसे ही आगे बढ़ता जाता है मैदानी महशर में अल्लाह तबारक व तआला के सामने हिसाब देने के वक्त के करीब होता जाता है, उसका हर दिन हिसाब किताब के दिन से करीब होता चला जाता है। यानी ये कि इंसान मैदानी महशर में क्या तैयारी करके जा रहा है, किस तरह से तैयारी करके जा रहा है, उसको इन्हीं अय्याम में, इन्हीं जिंदगियों में उसको अपना फैसला कर लेना है। और अगर उसने सही तौर पर फैसला कर लिया, सही तौर पर अमल कर लिया, तो वो दिन जो हिसाब का दिन होगा, वो दिन जिस दिन फैसला हो जाएगा या तो जन्नत में जाएगा या फिर जहन्नम में जाएगा। अगर उसने दुनिया की जिंदगी को कामयाब बना लिया तो समझ लीजिए फैसले का दिन उसके लिए कामयाब होगा। लेकिन अगर उसने इस मुख्तसर सी जिंदगी में 60 साल 70 साल जिंदगी में उस पर गौर फिक्र नहीं किया है, उसकी तैयारी नहीं किया है, हिसाब के दिन आने के लिए उसने अपने जहन में सोचा ही नहीं कि हिसाब का दिन भी आएगा, हमें हिसाब व किताब भी देना है, तो ऐसे शख्स के लिए हमेशा हमेशा परेशानी ही परेशानी है। मोहतरम हजरात व खवातीन, हम रोजाना देखते हैं, हर रोज देखते हैं, हर एक के करीबी में से, रिश्तेदारों में से, अकरबा में से, गांव वालों में से, मदीना वालों में से, शहर वालों में से हर दिन किसी ना किसी का इंतकाल होता है, जिसको चंद लोग उठाकर और कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं। ये किस बात की दलील है? ये इस बात की दलील है कि आज जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया था, 20 साल इसको उम्र मिली, 60 साल मिली, 70 साल उम्र मिली और ये दुनिया छोड़ करके जा रहा है। मतलब ये है कि आज ये जा रहा है, कल हमें भी जाना है और जाने के बाद हमें हिसाब किताब देना है। अब हम हिसाब के दिन की कामयाबी के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, इतनी सी बात सोचने की है, इस पर गौर व फिक्र करना है। मोहतरम हजरात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सराहत के साथ, इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया है। लोगों के लिए उनके हिसाब का दिन, वो दिन जिस दिन या तो दाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा या फिर बाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा, वो दिन करीब आ गया है। लेकिन वहुम फी गफलतिन मुरिदून, मसला क्या है? मसला ये है कि अब तक वो लोग गफलत में पड़े हुए हैं, दीन हक से मुंह फेरे हुए हैं, दीन इस्लाम से बिल्कुल गफलत में हैं, कोई भी उनको परवाह नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों और मेरी माओं और बहनों, हमें सोचने का मकाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब पैदा किया है तो हम ये गांठ लगा लें कि हमें मरना है, हर हालत में मरना है, मौत से छुटकारा नहीं है। और ये भी गांठ लगा लीजिए कि चाहे वो मुस्लिम हो, मोमिन हो, काफिर हो, यहूदी हो, नसरानी हो, कोई भी हो, जिस तरह से उसका ईमान है कि जो पैदा हुआ है उसको मरना है, इसी तरह से उसका ईमान यह भी होना चाहिए कि जो मरा है उसको दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा और जिंदा करके उससे हिसाब व किताब लेगा। ये हमारा ईमान होना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब हम एक मुसलमान हैं, हम एक मोमिन हैं, हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, वो मारेगा, दोबारा जिंदा करेगा और फिर हमसे हिसाब व किताब लेगा, तो ये हिसाब व किताब कैसा होगा? कैसा ये इंटरव्यू होगा? क्या एयर कंडीशन रूम में होगा? अभी आप देखें ये प्रोग्राम जो चल रहा है जोहर के बाद, जुमा के बाद से नहीं मुनक्किद किया गया। क्यों? इसलिए कि जुमा के बाद धूप थी, गर्मी की शिद्दत थी, इंतजार किया गया कि जब उस गर्मी की शिद्दत खत्म हो जाए उसके बाद हम प्रोग्राम चलाएंगे और लोग आएंगे। और आप भी अगर जुमा के बाद आपको बुलाया जाता तो आप नहीं आते। ये हमारी खवातीन जो अंदर बैठी हुई हैं ये नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, गर्मी में कौन जाएगा। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यहां पर बात यह है कि हिसाब का दिन करीब आ गया है, हिसाब का वक्त करीब आ गया है। यह हिसाब किस एयर कंडीशन रूम में होगा, किस एयर कंडीशन हाल
में होगा। कहां पर आप जाएंगे? जहां पर आपका हिसाब होगा, और वहां पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, धूप नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, ज्यादा ठंडी नहीं होगी, मोतदिल हवा होगी, मुतवस्सित हवा होगी, मुतवस्सित मौसम होगा। कौन सा हाल होगा, कौन सा रूम होगा, किसके सामने जाना होगा? मोहतरम हजरात व ख्वातीन, मैं कहना बतलाना यह चाहता हूं कि मैदान महशर में आपको जमा होना होगा। वहां की गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि इंसान उसको बयान नहीं कर सकता। आज सूरज की ऊंचाई इतने मीलों पर है, और उसके बाद जगह जगह पर आपको दरख्त, सायेदार दरख्त मिलते हैं, छतें मिलती हैं, और कुछ नहीं तो ये पानी मौजूद है अंदर की गर्मी मिटाने के लिए। तब हमारी ये हालत है कि हम 12 बजे 2 बजे प्रोग्राम में भी नहीं आ सकते। लेकिन उस वक्त का हाल क्या होगा जब मैदान महशर में कोई भी सायादार दरख्त नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरह का कोई साया नहीं होगा। उस वक्त आप बतलाइए, कोई छतें नहीं होंगी, इसी तरह से प्यास बुझाने के लिए कोई भी चीज मैसर नहीं होगी। तब हम उस गर्मी में गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे? जब सूरज बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा, आज इतनी दूरी पर सूरज है, तब हम सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब सूरज इतना करीब कर दिया जाएगा कि हमारे हाथ से टकरा जाए, फिर सायादार दरख्त भी नहीं है, कोई छत भी नहीं है, वहां पर हमें और आपको जमा किया जाएगा। वहां पर हिसाबो किताब होगा। और आज तो 12 घंटे 13 घंटे का पूरा दिन होता है, उसमें सिर्फ चंद घंटे गर्मी के होते हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाई और दोस्तों और मेरी माओ और बहनों, हिसाब देने वाला दिन ये 12-13 घंटे का नहीं होगा, ये घंटा होगा 50,000 साल का एक दिन होगा। और वहां पर इस कदर गर्मी होगी, इस कदर गर्मी होगी कि इंसान, जमीन जो होगी, जमीन तांबे की तरह से तप रही होगी, जिस्म से निकलने वाला पसीना ऐसे ही छूट रहा होगा जिस तरह से पत्थर से पानी छूटता है। मेरे भाई और दोस्तों और मेरी माओ और बहनों, इसी तरह से यह भी जान लें कि इंसान के जिस्म से पसीना जो निकलेगा कैसे ही खौल रहा होगा जिस तरह से कढ़ाई में रखा हुआ तेल खौलता है। लोगों की हालत इस तरह से होगी जिस तरह से धूप के दिनों में एक कुत्ता धूप में दौड़ता जा रहा हो, परेशान हो, गर्मी की शिद्दत परेशान कर रखी हो, और उसकी जुबान उसके मुंह से निकली हुई हो, ये लोगों की हालत होगी। ऐसी हालत में लोग हिसाबो किताब देंगे, अल्लाह तबारक व तआला सबको जमा करेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, लेकिन वजह क्या है कि उस दिन के हिसाब से हम गाफिल हैं, कयामत के दिन से हम गाफिल हैं, मैदान महशर में जमा होने वाले दिन से हम गाफिल हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमने ये समझ रखा है कि शायद वो दिन नहीं आएगा, या हमने ये समझ रखा है कि अभी हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा बाकी है। अभी तो हम 20 साल के हैं, अभी 40 साल हमें जीना है, 40 साल के हैं, 60 साल हमें जीना है, 60 साल के हम हैं, अभी 80 साल तक हमें रहना है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, वो लोग बेशक कयामत को दूर समझ रहे हैं और हम उसे बहुत करीब देख रहे हैं। किसने ये देखा है कि जब आपकी उम्र 80 साल होगी तभी आपको मौत आएगी? किसने ये देखा है कि जब आप अपने बच्चों की शादी कर देंगे तब आपको मौत आएगी? किसने ये देखा है कि अभी आपने हज नहीं किया है, हज कर लेंगे तब आपको मौत आएगी? किसने ये देखा है कि अभी आपकी बच्ची की शादी बाकी है, बच्ची की शादी हो जाएगी उसके बाद मौत आएगी? मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी चीज ने गफलत में डाल रखा है कि हमें ये यकीन ही नहीं कि मौत कब आएगी। हम ये समझते हैं जब हम 80 साल के हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, फिर कोई मर जाएगा, 2-4 साल हम चारपाई पर पड़े रहेंगे, उसके बाद हमें मौत आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को वाज़ेह कर दिया कि ये लोग कयामत को, मैदान महशर को, हिसाब के दिन को बहुत दूर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहां जब वक्त पूरा हो गया तो उसको मौत आ करके रहेगी। ऐसी हालत में हिसाब होगा
اور हिसाब जब होगा, यह भी याद रखिए आप, कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना बेटा बाप के काम आएगा, ना बाप बेटे के काम आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया, वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज की वजाहत कर दी कि इस चक्कर में न रहो कि दुनिया में हम पैसा देकर के आगे हो जाते थे, दुनिया में हम सिफारिश करके आगे हो जाते थे, दुनिया में हम अपना कुंबा और कबीला बतला करके आगे हो जाते थे, दुनिया में हम अपनी डिग्री बतला करके आगे हो जाते थे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा, उस मैदान में कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा। वला युक़बल मिनहा शफ़ाअतुन, और ना ही किसी की कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही मुआवजा दे करके आप आगे बढ़ पाएंगे। वला हुम युनसरून, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना ही उनकी किसी तरफ से मदद की जाएगी, कोई मदद नहीं करेगा। बेटा परेशान है, बाप उसकी मदद नहीं करेगा, बाप परेशान है, बेटा उसकी मदद नहीं करेगा, बीवी परेशान है, शौहर मदद नहीं करेगा, शौहर परेशान है, बीवी मदद नहीं करेगी, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। मोहतरम हजरात और ख़वातीन, मैं बतलाना यह चाहता हूं कि हिसाब का दिन होगा कैसे। हिसाब तो हमें देना ही है, लेकिन हालत क्या होगी, उस वक्त का मंजर क्या होगा, किस तरह से लोग होंगे। इतनी खवातीन अंदर बैठी हुई हैं, आप यहां पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं। आप ये बतलाइए, एक तरफ आपका एक बैग है जो लाखों रियाल का बैग भरा हुआ इस खेमे में रखा हुआ है, दूसरी तरफ आपके गोद में आपका छोटा सा बच्चा है। ला क़द्दर अल्लाह, अगर कोई ऐसी हालत आ जाती है कि भागना पड़ता है, आप क्या देखेंगे? क्या आप ये देखेंगे कि हमारा 1 लाख रियाल का बैग इस खेमे पे पड़ा हुआ है, हम उसको लेकर के निकलें? या आप ये देखेंगे कि अपने बच्चे को हम बचाएं, अपनी जान को बचाएं, अपने बच्चे की जान को बचाएं? आप इन खवातीन जो अंदर बैठी हुई हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये बच्चे को 1 सेकंड के लिए अपनी नजरों से ओझल नहीं कर सकती हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों और मेरी माओ और बहनों, कान खोल करके ये हम सुन ले कि वो वक्त ऐसा होगा, हिसाब का वक्त ऐसा हिसाब होगा, मैदानी महशर ऐसा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में उसकी भी वजाहत कर दी कि हम गलत फहमी के शिकार ना रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, वो दिन तुम देखोगे कि उस वक्त दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। आज 1 लाख रियाल का बैग पड़ा हुआ है, जान का खतरा हुआ, चाहे आप हो या आपकी खवातीन हो, बच्चे को पहले उठाएंगी। 1 लाख रियाल का, 1 करोड़ रियाल का वो बैग नहीं उठाएंगी। क्यों? इसलिए कि बच्चे की मोहब्बत वो जानता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चा दिया है, या अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चा दे करके वापस ले लिया है, उसको बच्चे की मोहब्बत मालूम है। जिसको अल्लाह तआला ने बच्चा नहीं दिया है उसको नहीं मालूम, लेकिन वो बच्चे की मोहब्बत में लाखों रियाल का बैग छोड़ देता है, छोड़ देती है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के जान बचा करके निकल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, उस दिन तुम देखोगे कि वो औरत जो दूध पिला रही है अपने बच्चे को, उस वक्त का आलम इतना खतरनाक होगा, इतना दहशतनाक होगा, इतना वहशतनाक होगा कि दूध पीते हुए बच्चे को वो भूल जाएगी, जो दुनिया में कभी नहीं हो सकता था। लेकिन उस दिन वो दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वो तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हर हामला अपने हमल को वज़ा कर देगी, छोड़ देगी। यानी ये दहशत का आलम होगा, ये खौफ का आलम होगा, इस तरह से वो मंजर होगा। लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि शायद ये लोग मस्त में, ये लोग एक
एकदम परेशान हाल हैं, ये नशे की हालत में हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नक्शा खींचा और फरमाया वो तरन्ना से सुकारा, तुम देखोगे जब ऐसा दहशतनाक माहौल है, इतना खतरनाक माहौल है, जो दूध पिलाती बच्चे औरत थी वो अपने बच्चे को छोड़ रही है, जिनके पास हमल था यानी हामला अपने हमल को वज़ा कर रही है, वो तरन्ना से सुकारा, और तुम देखोगे कि लोग बदमस्त नजर आ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे वो नशे की हालत में है, वो ना हम सुकारा, लेकिन वो नशे की हालत में नहीं होंगे। वलाकिन अल्लाह अज़ाब, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त।